Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as Assistant Professor in Chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this Tetrahedron Chemistry Classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry classes. So guys, in today's class I am going to discuss another aspect of SN reactions in the octahedral complexes, and that aspect is the basic hydrolysis. If you remember, in my last class I have discussed the equation reactions, right? And you know, equation reaction is also the part of the hydrolysis. This was that was the actually acidic hydrolysis, and today I'll discuss the basic hydrolysis. And after that, in the next video I will complete your NSN reactions and the water exchange reactions. It is not possible to cover all the reactions with great detail only in one lecture, right? So that's why I'm making the video in the separate parts. Okay. And see guys, before starting this basic hydrolysis, I want to discuss a little more important thing. So if you have seen my last lecture, right, on your equation reaction or acidic hydrolysis, then you must be observing the video is repeating twice actually after 13 minutes. So there is error from my side. Actually, during editing of the video, I lost a very important part of that video. So that part I am actually, and unfortunately I have deleted that part also, and so today I am actually first completing that particular part, which will take 2 or 3 minutes. After that I will start the basic hydrolysis. इतना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. Okay, so in the last class, if you remember, I was at this point और यहाँ से video दोबारा repeat हो रहा था. Okay, so in that case, if you see I have discussed for the cis isomer equation reaction in the cis isomers, where you are having this square pyramidal intermediate, and this square pyramidal intermediate actually is stabilized by the ligand to metal pi bonding. Okay, right? And this was the case of the cis isomers. Okay, when you have these two groups, actually the leaving group and the pi donor ligand are cis to each other actually, right? Now I am then I have discussed this mechanism for the trans isomers, where you have the pi donor ligand and your leaving group actually are on the trans side. And in that case also, when you have this pi donor ligand, then the rate of the reaction is the fast. When you don't have the pi donor ligand, then the rate of the reaction is slow. This can be seen here. It is 10 raised to the power minus 4, low value of the rate constant, and this is 10 raised to the power minus 3. This is the high value of your rate constant. So why this happens and what kind of the intermediate we can observe in that case. So guys, you can see here, if I try to make this intermediate, which is square pyramidal, then you can clearly see your OH group, which is actually on your trans side, and this is your metal, which is having this orbital dsp3. So there is no symmetry mesh to form the ligand to metal pi bond. So in that case, if you have the square pyramidal geometry, then this kind of pi stabilization would not be there in that case. So इसमें होता क्या है, जब इसमें stabilization नहीं है, तो फिर ये square pyramidal intermediate trans isomer के केस में बनता ही नहीं है. तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर ट्रांस आइसोमर के केस में ये नहीं बनता है, तो फिर कौन सा आइसोमर बनता है? तो ट्रांस आइसोमर के केस में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट इज द ट्राइगोनल bipyramidal intermediate. Okay, and that trigonal bipyramidal intermediate you can make in that manner. Say this is your cobalt. Okay, and in that case, say this is the d orbital of your cobalt. Okay, in that manner you can see here. So this lobe would be smaller. Okay, because this is the anti-bonding lobe, and then you can have above and below in like just like that. Okay, and in that case you can see your ethylene diamine would be here, and again you can see your ethylene diamine would be here. So this is En, and your group actually, leaving group actually has left from here, and after that you can see in this particular position you are having your pi donor ligand. So when you are having the pi donor ligand in that case, so definitely it will have the filled p orbital. Okay, and now you can see the symmetry is matching perfectly. So they actually laterally overlap, and when they laterally overlap, then this stabilization is actually there in case of your trans isomer. Okay, so this is trigonal bipyramidal, you can understand in that manner, right? So in that case, see, just like that.
Okay, this is triangle, this is above the plane, this is below the plane, and these two are actually you are seeing that they are actually the getting stabilization through the ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ट्रांस आइसोमर के केस में भी स्टेबलाइजेशन है, लेकिन वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की वजह से नहीं है, वो जो इंटरमीडिएट की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उस वजह से आ रहा है। तो गाइज मैं इतने डिटेल में ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को पूछ दिया, यू आर रिएक्टिंग विद द ट्रांस आइसोमर, व्हाट काइंड ऑफ द इंटरमीडिएट यू आर एक्सपेक्टिंग, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, और से ट्रांजिशन स्टेट और नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इसीलिए ये चीजें ग्रेट डेप्थ में आपको आनी चाहिए। सो दिस इज द रीजन एक्चुअली। ओके, एंड देन I am also discussing my last part there. Now see guys, अभी तक आपने देखा है कि सभी लोग बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, चाहे बेसिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एनेशन रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, एक्चुअली दे आर द प्रूफ ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द SN1 रिएक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, आपने हर चीज ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। आपके जो ये ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स होते हैं, ये आपके SN2 मैकेनिज्म भी शो करते हैं। अभी तक आपने देखा सिग्मा डोनर लिगेंड्स का केस, पाई डोनर लिगेंड्स का केस। नाउ यू आर हैविंग द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। आप याद रखिएगा, वेन एवर यू हैव द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ओके, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। ये SN1 रिएक्शन का प्रूफ नहीं है। दिस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। ओके, तो अब आप ये कह सकते हैं कि कैसे आप इसको बता रहे हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म है। तो इसके लिए भी देखिए सिंपल सा तरीका, इक्वेशन रिएक्शन में आपको यहाँ पे देखिए ट्रांस आइसोमर है, नाइट्रो, दिस इज क्लोरो, नाइट्रो इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, ये आपका है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें कि जो ये नाइट्रो है, ये नाइट्रो एक आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ओके, और अगर ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, देखिए इस वाले पिक्चर को छोड़ दीजिए, ये लास्ट वाले का डायग्राम है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला आप देखें, तो इसमें क्यों इस तरीके से ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, देयर इज क्लियर कट रीजन। सी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स इन दैट, दिस इज द ट्रांस कॉम्प्लेक्स, दिस इज NO2 हेयर, एंड टू ट्रांस टू दिस पोजिशन यू आर हैविंग दिस लीविंग ग्रुप। तो इसमें हो क्या रहा देखिए, कोबाल्ट जो है इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, ठीक है, बिकॉज इन दैट केस यू कैन सी द 3D, इट्स कोबाल्ट इज दिस टाइम इज कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास आपका 3D6 सिस्टम है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में है। तो और ये जो आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसके पास MT p ऑर्बिटल है। तो यहां से जो आपका मेटल है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पाई बॉन्डिंग में आपका इन्वॉल्व होता है, तो मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बनता है। ओके, अब देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चले गए। नाउ यू हैव द डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कोबाल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एंड यू नो द योर Cl विल आल्सो हैव द लोन पेयर, and now the cobalt, due to this ligand to metal pi bonding, has shifted its electron towards the nitro group, so there would be less repulsion between the electrons of the cobalt and the electrons of the क्लोरीन। तो रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, एंड वंस दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्लोरीन टू लीव फ्रॉम हेयर। तो फिर इसकी लीविंग एबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। और आपको पता है कि अगर SN1 रिएक्शन फॉलो होना है तो इस क्लोरीन ने निकलकर एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेट अपना पेंटा कोऑर्डिनेटेड intermediate बनाना है। Now this penta coordinated intermediate is not possible in this case. Why? Because this bond is strengthened now due to the decreased density of on the कोबाल्ट एक्चुअली। ओके, तो इसीलिए ये SN1 में ना जाके फिर सीधे सीधे SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से आप देखें कि ये SN1 के थ्रू ना जाके SN2 में जा रहा है जब आपका पाई एक्सेप्टर का केस है। ओके, तो ये तो ट्रांस की बात है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसका सिस आइसोमर भी बनाएंगे, जो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूं, तो सिस आइसोमर में भी इसी तरीके की बॉन्डिंग होगी, लेकिन वो बॉन्डिंग जो सिस आइसोमर में होगी वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, राइट। इतनी बॉन्डिंग तो होगी, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो वहां से आपका देखेंगे रेट भी, अगर आप देखेंगे तो रेट में भी डिफरेंस नजर आता है। तो ये वाला जो है फास्ट एसएन ट्रांस आइसोमर हमेशा फास्ट SN2 रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। सिस वाला क्योंकि उतना बढ़िया स्टेबलाइज नहीं होगा, अगर इसका सिस आइसोमर लेंगे तो उसका SN2 रिएक्शन का रेट थोड़ा सा
कम होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हमेशा ही ऐसा नहीं है, आप ये बात अपने दिमाग में डाल के नहीं चलेंगे कि हमेशा SN1 होगा। It will purely depend on this particular inert ligand, which is not a living group, but this that inert ligand, sometimes it could be sigma donor, sometimes it could be pi donor, sometimes it could be pi acceptor। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। ओके, अब देखिए, नाउ यू हैव सीन द सीरीज ऑफ योर पाई डोनर एंड द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। सो अगर आपने कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा कौन स्लो, तब आप उनकी लीविंग, ये जो पाई बॉन्डिंग वाले आपके हैं, तो देखिए कि कौन किसमें कितनी बढ़िया एबिलिटी पाई बॉन्डिंग बनाने की है। सी पाई डोनर की सीरीज में कोई कितना बढ़िया पाई, जो जितना ज्यादा पाई डोनर अच्छा बनाएगा उसका रेट उतना ज्यादा तेज होगा। इस केस में पाई एक्सेप्टर के केस में जो बहुत बढ़िया पाई एक्सेप्टर होगा उसमें रेट ज्यादा होगा, जो इतना अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं होगा उसमें रेट कम होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सीरीज ऑफ द पाई एक्सेप्टर एंड द पाई डोनर ligand। So guys, these things actually I have missed in my, I have not missed actually, I have lost that video. So I have completed that part completely now. Okay, now I'll discuss your initial your basic hydrolysis, guys. So basic hydrolysis, you can see the first very important point in the basic hydrolysis, pH should be greater than 8। तो इसमें आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे OH नेगेटिव, तो पीएच इसमें 8 से ऊपर चला जाएगा, तब बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है। नाउ देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वुड बी यूजफुल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NMR स्टडी शोड दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, राइट, hydrogen atoms of the NH2 in this ethylene diamine which are trans to Cl are more acidic। सबसे पहली बात, अगर मैं इसके कोई आइसोमर बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए कोई है, तो इसमें जो आपका यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन में जो NH2 है, जो NH2 इस क्लोरीन के ट्रांस में आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये NMR ने आपका शो किया है, ठीक है। तो अगर ये बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वट एवर द बेस वुड कम, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन विच वुड बी ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। ओके, तो वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा NH3 या अमोनिया जो भी है उसमें से, बट ये उसके ट्रांस होना चाहिए। सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल इन द ग्रेट डिटेल। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ दैट बेसिक हाइड्रोलिसिस, दैट मीन your whatever the proton would be abstracted from the ligand, that would be actually trans to the leaving group। Okay, then second group, it is mandatory to have at least one ligand with the acidic hydrogen, so that to follow that SN1 not follows, to follow the SN1CB mechanism, otherwise the mechanism would be else। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे आपने बनाना है SN1CB मैकेनिज्म, राइट, तो SN1CB मैकेनिज्म के लिए जरूरी है कि एक लिगेंड आपके पास ऐसा हो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट एसिडिक हाइड्रोजन, तब आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ द पाई डोनर लिगेंड। तो ये हमने पिछली बार भी देखा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, हम इसमें भी बता रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए पाई डोनर लिगेंड्स हैं, तब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इंटरमीडिएट की होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्टेबलाइजेशन मिलता है इसको। लेकिन याद रखिएगा, देखिए ये ClBr ये भी आपके क्या है, पाई डोनर लिगेंड्स है, ये डोनर लिगेंड्स है, लेकिन ये इतना पाई बॉन्ड, क्योंकि ये मल्टीपली बॉन्डेड तो है नहीं, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं हमेशा, तो ये मल्टीपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू चेक द लिस्ट ऑफ द पाई डोनर लिगेंड्स, यू विल फाइंड दैट द क्लोराइड एंड द ब्लोराइड, bromide and the iodide and the fluoride, but remember one thing, halides are not capable of forming the very good pi bonding to stabilize the trigonal bipyramidal geometry। For this you have to have your particular atom which can form the multiple bond। तो ठीक है, ये NH2 बना सकता है आपका, या ऑक्साइड्स O2 नेगेटिव है वो आपका बना सकता है, OH नेगेटिव है वो बना सकते हैं, लेकिन हैलाइड्स नहीं बनाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैकेनिज्म में आने वाले हैं, वहां पे आप इसको देखेंगे। ओके, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट rate of basic hydrolysis would be million times faster than the एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है बेसिक हाइड्रोलिसिस का बहुत ज्यादा आता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का बहुत कम आता है। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस मिलियंस में है आपका, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट होता है, इसके पीछे भी मैं अभी रीजन बताऊंगा कि क्यों ये इतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है मैकेनिज्म के दौरान। ओके, एंड दिस रिएक्शन लाइक योर एक्वेशन रिएक्शन इज ऑल्सो द प्रूफ ऑफ द SN1 रिएक्शन। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे SN1 रिएक्शन का प्रूफ है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट,
when you have actually the two complexes to compare for their rate towards your basic hydrolysis, तो वो कॉम्प्लेक्स जिसके पास कीलेशन हो रहा होगा वहां पे बेसिक हाइड्रोलिसिस का रेट ज्यादा होगा, या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी वहां पे बेसिक हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आ सकते हैं। ओके, नाउ सी कीप इन माइंड दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स इन द mechanism also. Okay guys, so now I am discussing a very important mechanism, and actually that mechanism was given by the Garrick. So you should always remember the name of the expert, Garrick, GARRIC, Garrick। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी एक बार जब मैंने आपका CFSE के लिए जो आपका एडजस्ट बताया था, उसमें मैंने आपका बोस्लो, पियर्सन एंड बोस्लो का बता दिया था, जहाँ पे मैं आपको इससे पहले 2-3 पहले लेक्चर की वाली बात थी, बट वो बोस्लो नहीं, इट वाज बसोलो, BASOLO। ओके, जहाँ पे मैं आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहा था। ओके, तो गैरिक यहाँ पे नाम है। तो अब देखिए, इस रिएक्शन को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तब आपके बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं कि अच्छा ये इस तरीके से जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर, मान लीजिए मेरे पास एक, सीधे मैं इसको जनरलाइज ना करके एक एग्जांपल लेता हूं। से आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स CONH3 5 times and I am having my Cl here. Okay, and 2 positive is over there, and since it is the basic hydrolysis, you are having the strong base that is OH negative, so it's a reversible step. Okay, and then you will have CO NH3 4 times along with the NH2. Okay, and your Cl and a positive over there with the removal of the H2O. Okay, ये स्टेप आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड ने एक अमोनिया से आपका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया तो वाटर निकाला, तो अमोनिया तो 4 रह जाएंगे और NH2 फिर 1 बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा कि जहां से ये हाइड्रोजन निकला है अमोनिया से, ये क्लोरीन के ट्रांस होगा, जो हमने कंडीशन में देखा था। अगर आप सिर्फ इस पे ही ध्यान रखते हैं और इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके समझ में आएगा, पहली बात, ये रिएक्शन, ये वाला स्टेप काफी फास्ट होता है। ठीक है, अब ये फास्ट क्यों है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब आप कहेंगे एसिड बेस कैसे है, तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका ब्रोंस्टेड एसिड है, तो आई एम राइटिंग इट एज ब्रोंस्टेड एसिड 1, ऐसे लिख देते हैं। आपको पता है बाय डेफिनेशन ब्रोंस्टेड एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच कैन डोनेट द प्रोटॉन, तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है। इस तरीके से ये वाला जो है, दिस आई एम राइटिंग एज द BB1, तो या इसको BB1 कह दीजिए, 2 कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम राइटिंग 2। ओके, तो ये ब्रोंस्टेड बेस है, बिकॉज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर द ब्रोंस्टेड बेस, तो इसने एक्सेप्ट करके वाटर बनाया, तो ये बेस हो गया आपका। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, काइंड ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड यू नो फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज वेरी वेरी फास्ट। ओके, नाउ इफ यू मूव ऑन द नेक्स्ट साइड एंड इफ यू फॉलो द रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन, तब ये वाला प्रोटॉन डोनेट करेगा, तभी तो ये OH बनाएगा, तो ये आपका ब्रोंस्टेड एसिड है, बिकॉज इट इज नाउ प्रोटॉन डोनर, सो आई एम राइटिंग इट एज ब्रोंस्टेड एसिड 2। ऑब्वियसली इट वुड बी नाउ बेस, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो ये बनेगा। ये NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, NH3 बनाएगा, तब ये 5 टाइम हो जाएगा। देन यू कैन राइट ब्रोंस्टेड बेस 1। ओके, ऐसे आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप इनको आप कंपेयर करें, आपने कुछ नहीं करना, देखिए एसिड 1 और बेस 1 ले लीजिए, इनका पेयर बना दीजिए। जरूरी नहीं एसिड 1 बेस 1, बस यहाँ पे एसिड, यहाँ का आप देखिए रिएक्टेंट साइड का एसिड ले लीजिए, उस साइड का बेस ले लीजिए। ठीक है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके क्या है, कंजुगेट पेयर है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इन दोनों को भी ले लेंगे, वाटर और इसको, तो ये भी आपके कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं और इस वाले के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये बन रहा है इन दोनों की वजह से। जब ये वाला इन दोनों की वजह से बन रहा है, तो फिर ये एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते तो है SN1, फॉलो तो अभी हम बताएंगे कि SN1 कर रहा है, SN1 CB बोल देंगे इसको। CB का मतलब
क्योंकि कंजुगेट बेस, तो ये जो कंजुगेट बेस बना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं। तो SN1CB है, लेकिन ये काइनेटिक्स जो है वो सेकेंड ऑर्डर की शो करता है। किसकी शो करेगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स? इट इज फॉलोइंग because the conjugate base which you are forming actually it is formed by the reaction between these two species, okay। तो इसलिए रेट इसका इनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए it is following the second order kinetics, okay। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसको फर्दर जानना चाहें then you can very easily determine the it's a reversible reaction, so you can calculate the value of the K, and K you know it's equilibrium constant। so equilibrium constant के लिए क्या होगा, आप देखें ये वाला कंजुगेट आपको पता है ये कैसे डेवलप किए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस योर CB, आई एम राइटिंग इट एज CB, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस। देखिए ये बेटर इसलिए है CB इसको लिखना, क्योंकि अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स एज सच लिख दूंगा तो इसमें ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें होता ही होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, राइट। बट मैं CB लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कंसंट्रेशन, अदरवाइज यू हैव टू राइट a little longer actually, right, like concentration of conjugate base like that। then उसके बाद आपका ये वाटर की कंसंट्रेशन भी आ गई आपकी, रिमेंबर दे आर द कंसंट्रेशंस, ओके। एंड देन दिस शुड बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन, ओके। and of course 2 positive is over there, and then the concentration of this hydroxide, so this is your equilibrium constant। अब यहां से आप इस कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ये क्यों जरूरी है अभी आगे पता चलेगा। so from this equation you can determine the concentration of the CB। so concentration of conjugate base, so that would be equals to, देखिए जिसकी निकालने हैं तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। so you can write K multiplied by complex which is 2 positive, multiply by the concentration of OH negative, okay, and then this should be divided by the concentration of the water। ये ले सकते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ओके। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एक्चुअली। सो अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपका बना है विच वाज वेयर CO NH3 4 times along with your NH2 and Cl, and now this will have only one positive। one positive क्यों है? क्योंकि न्यूट्रल से हमने एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड रख दिया है। तो जो बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट भी ध्यान में रखेंगे। नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर्स पुराने देख सकते हैं, वहां से आप समझ जाइए, ओके। सो इन दैट केस यू कैन सी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया। अब यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, दैट मीन माइनस Cl नेगेटिव। क्यों बाहर निकला इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं, ओके। एंड देन यू विल हैव CO NH3 4 times, and then you are having your NH2, and then it would get 2 positive over there, क्योंकि कोबाल्ट ने 3 रहना है ना, अभी 1 था, एक नेगेटिव निकल गया तो इसके ऊपर 2 आना ही पड़ेगा, ओके। प्लस Cl नेगेटिव, मान लीजिए ये ऐसे हो गया। इससे if you focus on this particular mechanism, so this step is actually the slow step and also the RDS, that is the rate determining step, and if you note then in that case the coordination number is the 5, okay। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद वाले स्टेप में बहुत आराम से वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो क्या होगा? देखिए वाटर है क्या? HOH, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो NH2 नेगेटिवली चार्ज था इसको तो एक प्रोटॉन मिल जाएगा, तो ये NH3 बन जाएगा, तो ये NH3 फिर 5 हो जाएंगे, ओके। और एक OH इसकी प्लेस ले लेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CO NH3 5 times and your OH, ओके, एंड ऑफ कोर्स 2 पॉजिटिव, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं उन पॉइंट्स पे कि रिएक्शन का रेट मिलियन टाइम्स फास्टर क्यों है, इसको समझने वाली बात अब है, ओके। सो टू एक्सप्लेन द मिलियन टाइम्स फास्टर रिएक्शन रेट,
right, of this basic hydrolysis, then your acidic hydrolysis, you have to consider that particular intermediate. So in that case, remember very important thing, whenever you are having the pi donor ligands, okay, and you know this NH2 is actually now a very good strong donor, okay. So when it is a very good donor, so what it will result in the pi bond formation. तो इस केस में जब भी इस तरीके के लिगेंड आपके होंगे, तो आप याद रखिएगा जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें स्क्वायर पिरामिडल नहीं बनेगा, ओके। स्क्वायर पिरामिडल दूसरे केसेस में बनेगा, लेकिन जब इस तरीके के पाइडोनल लिगेंड्स होते हैं, राइट, तो उस केस में हमेशा और हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती हुई नजर आती है। तो कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है उसको आप देख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज मैं ये वाला एग्जांपल से लेके क्लोरीन बाहर निकला है, तो ये कैसे निकला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझे, see, first of all, I am not going to explain this trigonal bipyramidal. I am explaining why this chlorine is leaving from here and why the reaction is rate of the reaction is the million time faster. See what will happen now. This NH2, if you compare these, like you have NH3 and then you are having the NH2 negative. So due to this negative charge, actually it's a very strong donor. Okay, it's a very strong donor. So what will happen when this electron density is donated to the cobalt? So there would be the increased electron density on the cobalt. और कोबाल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, then there would be the repulsion between the electron density of the cobalt and on the chlorine. तो कोबाल्ट क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये वाला, इसमें रिपल्शन की वजह से भी वीक हो जाएगा। द मोमेंट द बॉन्ड बिकम्स वीकर, तो ये क्लोराइड जो है बहुत अच्छी तरीके से लीव करके यहाँ से चल जाता है। तो ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड बन रहा है, राइट, जो कि बना है OH ने जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तब से, तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल करे, तो ये आराम से निकल के चला गया। एक तो रीजन ये है इसके पीछे की रेट इसका बहुत ज्यादा तेज होता है, ओके। दूसरा, अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबिलाइज्ड इंटरमीडिएट, because this intermediate is the trigonal bipyramidal intermediate, because the coordination number is 5. So if you want to draw that intermediate, so what you can do, you can write say cobalt here. I can write cobalt, okay, and then say your NH2 is here. Of course नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बोलेंगे नहीं आपका, क्योंकि ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो एक अमोनिया हम इधर लगा देते हैं NH3, एक अमोनिया हम इधर लगा देते हैं NH3, दो और बचे, एक ऊपर एक नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो एक अमोनिया यहाँ आ जाता है and next ammonia would be here, okay, and of course 2 positive is over there, ऐसे ले लेते हैं। तो अब क्योंकि ये क्या कर सकता है, बहुत आसानी से ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, और जैसे ही इसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन तो आपको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, सो ये इधर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोबाल्ट को ऐसे इधर पाई बॉन्ड बना देगा। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनेगा, दिस पाई बॉन्ड एक्चुअली स्टेबिलाइजेस दिस इंटरमीडिएट। सो टू फैक्टर्स आर फेवरिंग which are increasing the rate of the reaction many times, actually the million times. The two reasons are this intermediate, which is not a square pyramidal but trigonal bipyramidal, it is stabilized by the strong donation of the NH2 group, right, which is forming the pi bond. So it is getting the pi bond stabilization. And secondly, leaving group यहाँ से आपका बहुत आसानी से निकल रहा है, वो भी इसकी वजह से। इसीलिए जब भी आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो रिएक्शन का रेट बहुत तेज होता है। तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ इफ यू गो टू द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, तो आपको पता है कि अब रिएक्शन का जो रेट होगा, सो आई एम राइटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन एज R, ओके। So that rate of the reaction, right, if you follow, that would be directly proportional to what? Concentration of this particular species, okay. So क्योंकि ये देखिए rate determining step है ना, rate determining step में तो यही involve है, then you can write CO NH3 4 times, NH2 and Cl, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। Of course the positive is there. And if you replace the sign of this proportionality, then you will get, say, small k. Intentionally I am writing the small k, and then again you can write this particular species CO NH3 whole 4 NH2 and the Cl with a positive sign, okay. इसको आप ऐसे, suppose this is the equation number 2. So what is this? This is actually, if you notice, this is your conjugate base,
तो ऊपर अगर आप देखें ये क्या है, देखिए ये स्पेशीज और ये स्पेशीज क्या है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन आपने यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो आप क्या करें, कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, that means by putting the value of the concentration of the conjugate base from equation 1 to equation 2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, रेट that is equals to say I am writing it as small k into k। स्मॉल k तो था ही था और एक k आपका ऊपर से आया। ओके, और जैसे ही ये आया तो यहां पे आप देखिए कंसंट्रेशन किसकी है, कॉम्प्लेक्स की, सो यू कैन राइट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स विद 2 पॉजिटिव। ओके, इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन भी है, दैट इज OH नेगेटिव। ओके, एंड वाटर का कंसंट्रेशन भी है, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय H2O। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो इस तरीके से आप इसके लिए रेट डेवलप करते हैं। तो इसको अगर चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, फाइनल रेट यू कैन राइट इन लाइक दैट, रेट इज इक्वल्स टू से KB, इसको KB लिख लेते हैं, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, 2 पॉजिटिव ऊपर था, कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, और KB जो है आपका एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में जो आपका समराइजेशन है वो किस किस का है, K मल्टीप्लाइड बाई K, स्मॉल k कैपिटल K डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द H2O। सिंस वाटर आपका एक्सेस में रहता है ना, और वाटर एक्सेस में रहता है तो इसको कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो क्या एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया, इस तरीके से डेवलप किया। Now you can clearly see the rate of the reaction actually is depending on the concentration of the complex as well as the concentration of the base। तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि ये SN1CB कंजुगेट एसिड बेस पेयर मैकेनिज्म SN1 के थ्रू है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म, राइट। अगर ये मैकेनिज्म आपके समझ में आता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर तो आपको आसानी से आप कोई भी चीज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये पॉइंट आता है, हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली सेइंग दैट दिस इज द SN1CB मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म है, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस आप लेते हैं इस केस में, तो हमेशा और हमेशा आपका ये SN1 मैकेनिज्म होता है। तो आप कहते हैं कि भाई SN1 मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, तो सिंपली अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं और बेस की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ओके, बेस की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। सी फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स you should know we can make any second order reaction as a first order reaction by taking the one of the reactant concentration at the high concentration। तो इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये फीचर एक्चुअली में है किसका, ये SN1 रिएक्शन का ही तो फीचर है। तो अगर आप इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस वजह से, और इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सब प्रूफ करते हैं कि ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस वाज द केस व्हेन यू हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। So not the case of the pi donor and whatever all these things, but you should remember strong base। strong base क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो आराम से ऊपर की तरफ को अपना दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन और देखिए मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो वीक बेसिस के केस में क्या हो सकता है, so I took the case of the strong base। now you can suppose you have the weak base, say for example you are having the weak bases if you are having, then you can have your N3 negative azide है, okay, then your NO2 negative, या आपका मान लीजिए थायोसाइनाइड आ गया, ये सब आपके क्या है, SN2 में क्या है, ये आपके वीक बेस है। देखिए ये जब ये वीक बेस हो जाएंगे तो इन केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, तब ये आपका SN1CB मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा, उस केस में ये फॉलो करेगा SN2CB। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि छूटा हुआ है या इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ वीक बेसिस, राइट, तो आप क्या होगा फिर ये SN2CB। अगर आप देखिए ये वीक एसिड वीक बेसिस नहीं जानते तो इसको पढ़ लीजिए, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक्सक्लूसिव लेक्चर एसिडिटी और बेसिसिटी पे
जरूर बनाऊंगा, बट लेकिन इसको खत्म करने के बाद इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, जो अभी शायद हफ्ता भर और लेगा, आई हैव टू स्टार्ट दैट ऑर्गेनोमेटालिक, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, उसको हम थॉरोली कवर करेंगे। ओके, से दीज बेसिस आर देयर। और इन बेसिस के साथ मान लीजिए, क्योंकि रिएक्शन किस में होते हैं हमेशा, एक्वस मीडियम में ही होते हैं जनरली, तो मान लीजिए वाटर भी है। तो अब पानी जब सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है तो दैट सॉल्वेंट मस्ट बी इन एक्सेस। ओके, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होगा, इनका कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये जो वाटर है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा यहाँ पे। नाउ इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपके इस तरीके के वीक लिगेंड हैं, दे कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट एच पॉजिटिव, दे कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव फ्रॉम द अमोनिया, या अमोनिएटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स है वहां से ये ले नहीं सकते। तो अगर ये नहीं ले पाएंगे तो फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर का तो कोई कंसेप्ट बचता ही नहीं है। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बनेंगे तो SN1CB तो इस केस में होगा नहीं। ठीक है, सो इट कैन नॉट प्रोसीड थ्रू SN1CB, लेकिन फिर ये आपका जो है SN2 रिएक्शन से जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे इसको हम CB तो खैर नहीं कह सकते, वेरी सॉरी। तो ये SN2 मैकेनिज्म से जाना ज्यादा फॉलो करते हैं। तो कैसे ये SN2 मैकेनिज्म से जा सकते हैं, यू कैन check very efficiently. The same complex I am taking. Okay, this is Cl negative, Cl 2 positive, coordination number is 6 in that case, 5 plus 1 6, and then you are having H2O. अब क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा ना इन दोनों के बीच में कि हम पहले ये अटैक करें या ये अटैक करें, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस तरीके के जो वीक बेस होते हैं ये वाटर के अगेंस्ट बैटल लूज कर देते हैं कोबाल्ट पे अटैक करने का। ओके, तो फिर वाटर पहले प्रेफरेंशियली अटैक कर देता है। तो ये स्टेप जो है आपका काफी स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वैसे ही है, वाटर आप 7 डालेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट करता नहीं हायर कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्लो जाता है, और अगर ये स्लो जाता है तो फिर ये RDS हो सकता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और यहां पे जो आपको स्पीशीज मिलेगी दैट वुड बी CO NH3 5 times Cl along with the H2O। ओके, तो हर केस में देखिए पानी ही अटैक कर रहा है। ये भी याद रखेंगे कि अटैक तो सिर्फ वाटर करता है, और आपका दोनों ही, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो चाहे वीक बेस का केस हो। ये क्वेश्चन भी शायद एक बार पूछा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, नाउ यू आर हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 7, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर अनस्टेबल है तो ये बहुत रैपिडली, वेरी फास्ट इसको लूज करेगा क्लोरीन को, एंड देन यू विल हैव योर प्रोडक्ट CONH3 होल 5, एंड देन यू आर हैविंग योर H2O। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में तो डिफरेंस साफ नजर आ रहा ना। वहां पे आपका क्या होता था, OH नेगेटिव आता था, लेकिन यहाँ पे वाटर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म बन गया। तो अगर आप इसके लिए भी रेट देखना चाहते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही था। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ओनली। है आपका SN2 मैकेनिज्म, लेकिन फॉलो क्या कर रहा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता रहना चाहिए। सेकंड ऑर्डर है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है, वहां इससे पहले आपके फर्स्ट ऑर्डर था लेकिन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कभी भी आप देखें दोनों ही मैकेनिज्म, चाहे SN1 चाहे SN2 है, तो इन केस में जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो आपका लगभग लगभग सेम रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा बेस की कंसंट्रेशन से, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जबकि इससे पहले ऐसा वाला नहीं था। तो ये वीक बेस का केस भी आप जरूर याद रखेंगे। तो अगर इतना आपको पता रहता है तो शायद आपसे कोई क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में मिस ना हो। ओके, एंड रिमेम्बर वन थिंग, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इतना पढ़ लिया तो ये सफिशिएंट हो गया। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, राइट। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Say, okay, now I'll try to solve some of the questions। तो इसमें प्रीवियस ईयर CSI या नेट के क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
the reaction which is actually shown here and it is forming this particular product. तो ये आपका क्या फॉलो करेगा, SN1, SN2, SN1CB और SE2, ये आपने बताना है इनमें से कौन सा फॉलो करेगा. ओके, तो सिंपल देखिए, क्योंकि ये आपका यहाँ पे अमोनिया है एंड इट इज हैविंग द प्रोटोन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड इट शुड बी एक्चुअली ट्रांस टू दिस वन. और देखिए स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव भी आ रहा है, तो यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर तो जरूर बनेगा. तो ये एग्जांपल आप ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, तो इसके लिए तो ऑप्शन 3 आप सीधे टिक कर लें. ओके, तो ये ऑप्शन सी है आपका. देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होते ही नहीं, दिस कैन नॉट बी योर आंसर. एंड अगर ये आपका मान लीजिए कि वीक बेस होता तभी ये SN2 होता, तो ये भी आपका हो नहीं सकता. द कंपटीशन इन बिटवीन दीज टू, SN1 हो सकता है लेकिन कंजुगेट पेयर बनते हैं, आपने भी देखा है. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यू कैन सी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस काइंड where cyano complex is there, OH negative is there, chloride ion in comparison to this reaction. Okay, एक रिएक्शन ये दिया है, एक रिएक्शन ये दिया है. अब कंपेयर करना है आपने क्या, इन कंपैरिजन टू रिएक्शन का रेट आपने बताया है कि स्लो होगा या ज्यादा होगा. ओके ठीक है. देखिए इसमें तो इन वाले में अगर आप देखें ऊपर यहाँ पे, तो कोई भी आपका ना इसके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियसली इनके लिए रेट तो स्लो होगा. तो पहले वाले का जो रेट है वो आपका स्लो होगा, ठीक है, और दूसरे वाले का फास्ट होगा. तो पहले यही चेक कर ले. तो स्लो, तो पहला वाला स्लो लिखा हुआ है तो ठीक है, ये आंसर हो सकता है. फास्ट है ये तो हो नहीं सकता. फिर तीसरा वाला स्लो है तो ये भी आंसर हो सकता है. चौथा फास्ट है. ये दो तो डी, बी और डी नहीं हो सकते. वाई? क्योंकि पहला हमको पता है कि स्लो होगा, तो स्लो. ओके, एंड द रेट डिपेंड्स ऑन, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ आपने ए और सी में से अब आपका सेलेक्ट करना है. और आप अभी अभी देख कर आए हैं कि जब भी इस तरीके के रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपका ये लिगेंड होता है, तो इन केसेस में जो रिएक्शन का रेट होता है वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं. अभी आपने देखा है, राइट. तो अगर आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं. राइट, ये है ना, देखिए हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो सी कैन नॉट बी योर आंसर. सी कैन नॉट बी योर आंसर. तो आंसर किसका है, सिर्फ पहला वाला आपका सही नजर आ रहा है. स्लो भी है पहला वाला, और इसका रेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा. इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में जरूर दिख सकते हैं. देन यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this question actually I have taken from the CSIR net to December 2014. ये वहां से लिया हुआ है. तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको सारे फीचर मैकेनिज्म पता है देन अगेन इट्स वेरी इजी. तो बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहले कह रहा बेस हाइड्रोलिसिस है इस कॉम्प्लेक्स का, इज एन ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. हमको पता ही है ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, अभी आपने देखा है, ठीक है. वेयर एज दैट ऑफ दिस वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये भी आपने देखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करता है. अभी आपने देखा कि ये इस तरीके की कॉम्प्लेक्स जाते तो SN2 से है लेकिन काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की फॉलो करते हैं. ये वाले जाते हैं SN1 से है लेकिन काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर की शो करते हैं. ओके, द रेट डिपेंड्स ऑन बोथ केसेस सोनली. दोनों ही केसेस में रेट डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. अभी आपने देखा दोनों ही केसेस में कोबाल्ट के ऊपर डिपेंड करता है. दिस में बी ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपने बताना है. सो दीज आर द ऑप्शंस कि कौन सा इसमें आपका हो सकता है, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ आयनाइजेबल प्रोटोन इन दिस कॉम्प्लेक्स, हाँ है. देखिए इसके पास तो है आयनाइजेबल इस कॉम्प्लेक्स में, बट नॉट इन COCN6, ठीक है, इसके पास नहीं है. तो भाई ये तो ठीक हो सकता है ऑप्शन एक. दूसरा देखें, SA1CV मैकेनिज्म इन केस ऑफ दिस वन. अब इस वाले के लिए जो है आपका SN1CB, ऑफ कोर्स पता है कि इसमें SN1CB है क्योंकि कंजुगेट एसिड बेस पेयर अभी आप देख कर आए हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक लगता है. सी देखें, SN1CB मैकेनिज्म इन केस ऑफ दिस, नहीं इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आपका पाई सॉरी वो जो आपका एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन है वो नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी फॉलोड. देन डी, SN1CB इन बोथ, नहीं दोनों में भी नहीं हो सकता. तो देखिए पहला और दूसरा सही है. नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस A एंड B. अच्छा ठीक है, ये देखिए पहले में ही आंसर मिल रहा है, तो A और C तो करेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि हमने कैंसिल कर रखे. खाली B भी नहीं हो सकता, A और D भी नहीं. तो आपका सही आंसर ये C वाला है. ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. देन देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम द December 2017. ओके, तो इस केस में आप देखें कि रिएक्शन जो है हाइड्रोक्साइड आयन और इनके बीच में हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर स्पीशीज.
है। ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। 1 अमोनिया लिगेंड एक्ट एज द ब्रोंस्टेड एसिड, बिल्कुल होता है, प्रोटॉन डोनेट किया है इसने तो ये ब्रोंस्टेड एसिड भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। और द एंटरिंग ग्रुप इज वाटर, हाँ वाटर भी एंटर करता ही है, आपको पता है कि एंटर, मैंने बताया दोनों ही केसेस में क्या है, वाटर एंटर करता है, दिस कुड बी द आंसर। हेपाटो कोऑर्डिनेटेड का मतलब है 7 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज बनेगी, नहीं 7 इसमें नहीं बनती, इसमें 5 कोऑर्डिनेटेड बनती है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। तो सिर्फ ए और बी है। अब ऑप्शंस देखें, करेक्ट स्टेटमेंट देखिए ए और बी है, तो इस केस में भी ऑप्शन नंबर 1 आपको सही नजर आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एग्जांपल्स। अब देखिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने और लिया हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन। ओके, तो 18 एग्जामिनेशन में ये देखिए ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ये आपका जो है 2 आइसोमर्स हैं, ये रेड आइसोमर होता है, ये पर्पल आइसोमर होता है। ओके, तो इसके लिए आप मेरा आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब इन केसेस में आपने देखना है 2 आइसोमर्स अंडरगोज द बेस हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। अच्छा, दोनों ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहे हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ये कह रहा है ए रिएक्ट फास्टर देन बी एंड बोथ गिव्स द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों मिक्सचर देंगे प्रोडक्ट का। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें भी मैं अभी आऊंगा डिटेल में। ओके, ए रिएक्ट फास्टर, अब देखिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्या, ऑफ कोर्स इसने फास्ट रिएक्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए ये लीविंग ग्रुप है Lg, ठीक है, ये Lg है, ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके ट्रांस में एक आपका NH2 लगा हुआ है जहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा। ये क्लोरीन है लेकिन इसके ट्रांस में कोई एब्स्ट्रैक्टेबल प्रोटॉन है नहीं, तो इसका रेट तो स्लो होगा। तो देखिए ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ये तो ठीक आती है, तो आपने वही ऑप्शन आप सेलेक्ट करने हैं जहां पे ए रिएक्ट फास्टर देन बी है। तो बी रिएक्ट फास्टर ये हो नहीं सकता, बी रिएक्ट फास्टर हो नहीं सकता, 2 तो आपने ऑप्ट आउट कर दिए। नाउ यू आर कमिंग बैक दीज 2। ओके, तो 1 और 3 में से बोथ गिव द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सी इस केस में सिर्फ बी जो है, दिस वन इज एक्चुअली गिविंग द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं आपको कि इसका ऑप्शन जो है वो। So guys, this can be the possible explanation of this particular question, but or possible explanation of that question. Why actually your purple isomer is having the mixture as the product, and why the red isomer is having only one kind of the product. Okay, if you see, this is actually your red isomer, in which you can see here is nitrogen is your tetradentate. So don't bother about how the bonding is going on, because this nitrogen can form 4 bond. So it is forming 4 bond. 1, right, with this one, second with this one, third with this one, and fourth with this one. Okay, and both nitrogens are connected in the complexes. Okay, so this is the complex. In the first stem, your hydroxide will abstract proton, and of course you can see in that case this is your leaving group, right? This chlorine is your leaving group, and that leaving group is having trans position abstractable proton. So this hydroxide can abstract proton from here, and water molecule will remove. Once the water molecule will remove, you will have this species. Okay, negatively charged. Fine. After that you can see 2 positive was there. Now since this is negatively charged, so you have to put positive here to meet the requirement of the oxidation state of the cobalt. यहाँ तक तो कोई problem नहीं है. And after that you can see when electron density actually increases here. Okay, so that increased electron density will actually weakens this particular cobalt carbon bond. As I told you already, whenever the electron density increases here, then there would be the decrease in the bond strength in that case. So this negatively charged, which is a strong donor, it facilitates the removal of that Cl as a Cl negative from here. और जैसे ये टूटता है, as you know, since it is following the basic hydrolysis mechanism and it is having the abstractable proton, SN(C1) mechanism is there. So you will have the intermediate as trigonal bipyramidal. Okay, this is the triangle face, और ये 3 आपके इसमें NH2 और एक NH लगा हुआ है. फाइन. और अब देखिए क्या होगा इन लास्ट स्टेप में, वाटर मॉलिक्यूल को अटैक करना है.
So when water molecule attacks, so water you can write it as H positive and OH negative. Fine. So the negative charge which was there on your nitrogen, it will abstract a proton here and it will become NH2. So I have written NH2 here. Okay. अब ये OH बचा हुआ है, तो OH जैसे ही बचेगा तो OH के पास देखिए अब कितने फेसेस हैं, एक फेस ये वाला भी आ गया आपके पास, एक फेस ये वाला भी आ गया, एक फेस ये वाला भी आ गया। ओके, तो अब इसके पास तीन एजेस इसमें आपके अवेलेबल है कहीं से भी जाने के लिए, तो ये तीनों एजेस में चला जाएगा और तीनों से भी कहीं से भी जाए ज्योमेट्री आपके कंपाउंड की सेम ही रहनी है। दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, तो ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का कंपाउंड बनाता है जिस कंपाउंड में 100% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। देर इज नो चेंज ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ रिटेंशन, देर इज नो चेंज इन द configuration, but configuration actually retained by the species. So I'm saying that 100%, but not exactly 100%, it is more than 98%. तो जो A वाला आइसोमर है पर्पल, ये तो आपका जो है एक ही प्रोडक्ट आपको देगा। अब आते हैं, आप देखिए दूसरे आपके पर्पल आइसोमर में। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ योर पर्पल आइसोमर, एंड इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द पर्पल एंड द रेड आइसोमर इज व्हाट? See here, in that case of the red isomer, you are having the abstractable proton trans to the leaving group, but in that case you can see the chlorine here and this is transposition. Now it is not having any abstractable proton. Okay, तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि OH ने हाइड्रोजन निकालनी है। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकाल सकता है भाई, अब इसके पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं भाई। हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता है, तीन जगह से हाइड्रोजन निकाल सकता है। ठीक है, अगर ये यहां से हाइड्रोजन निकालता है तो OH इसके अपोजिट जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ये यहां से निकालता है तो इसके अपोजिट आना चाहिए। तो अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलने की वैसे ही पॉसिबिलिटी लगती है। चलिए फिर ये एक इंटरमीडिएट भी अगर यहां पे बन गया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द क्वेश्चन सेज दैट both the isomers are forming the trigonal bipyramidal intermediate, but it is not like that, right? It is written, but it is not like that exclusively your trigonal bipyramidal will form. तो ये क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट। तो ये देखिए, ये सॉरी नॉट प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, इट शुड बी पिरामिडल। सो आई हैव मेंशन रॉन्गली, सो इट शुड बी स्क्वायर पिरामिडल। ओके, देखिए ये स्क्वायर है, ये ऊपर पिरामिड चला गया आपका। सो ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, ना कि आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट सिंस दिस स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, ये क्विकली रीअरेंज होके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में चला जाता है, रीअरेंज होके। तो ये लगभग 85% के आसपास रीअरेंज हो जाता है। और जब 85% के आसपास रीअरेंज हो जाएगा तो ये ऐसा ही बना देगा जैसे कि यहां पे ये एक्स बन रहा है। तो प्रोडक्ट वही होगा जो यहां पर 80% है। वाई मैंने लिखा है, दोनों सेम है। जहां पे आपका OH जो है इसके एंटी चला जाएगा, तो 85% तो ये है। अब जब तक ये अनस्टेबल होने की वजह से रीअरेंज होता है, बट सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ दिस आइसोमर एक्चुअली आर ट्रैप्ड इन द सॉल्यूशन, दिस स्क्वायर पिरामिडल। और जब ये ट्रैप होता है तो ये OH जहां से क्लोरीन आपका लीव किया था, OH वहां जाके आपका जुड़ जाता है। तो 15% कंसेंट्रेशन इसकी भी निकल कर आती है। सो दिस इज द correct explanation which you can give actually. Okay, so if you check the answers, then you will find, okay, fine, A react faster, very good, but B gives the mixture of the product, and B was your purple isomer. Okay, so this was the possible explanation for this one. Clear? Now moving to the next question. Okay, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 के एग्जाम में ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जितना भी आप अभी तक पढ़कर आए हैं, अगर आपको वो चीजें क्लियर है, देन यू विल ऑलरेडी नो व्हाट इज द आंसर एक्चुअली। सो सी, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पिक्चर हेयर। सी, 4 पिरीडीन यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, बीच में कोबाल्ट है। ओके, तो ये आपका कोबाल्ट है इस तरीके से। और मान लीजिए कि हम इसका कौन सा आइसोमर बनाता है ये, तो आइसोमर तो इसने खैर यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे समझ जाइए कि मान लीजिए कि एक मैं क्लोरीन यहां दे देता हूं, ओके, और एक क्लोरीन ऊपर दे देता हूं, एक पिरीडीन यहां, एक पिरीडीन यहां, एक पिरीडीन यहां, और एक पिरीडीन यहां। पिरीडीन आई होप यू नो इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, और यहां पे नाइट्रोजन रहेगा। ठीक, तो इसके ट्रांस में देखिए कोई भी क्या नहीं है, एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन नहीं है। अगर एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन नहीं है, देन इट कांट बी योर SN1CB मैकेनिज्म। ये तो हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है,
और ये कहता है इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इज दिस वन, 4 pyridine और Cl2 और OH। ये तो तब बनता जब एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन इसके पास होती, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। रेट एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, और दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये पता है आपको कि ये कभी दोनों के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, ये तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट मीन इट कैन नॉट बी योर आंसर। और अभी आपने देखा है कि रिएक्शन का रेट हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा थोड़ी देर पहले, तो ये ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और ये देखिए 4 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ये 4 मार्कर में है, एग्जैक्टली ये हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड तो नहीं है, बट इट इज फ्रॉम योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो मैंने सोचा मैं इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आइसोमर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और शायद ये भी 4 मार्कर क्वेश्चन है या 2 मार्कर क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर, बट दिस क्वेश्चन वाज देयर एक्चुअली इन योर 2019 एग्जामिनेशन। तो सेंटर में इसने कह दिया इरिडियम है, और ये ट्रांस आइसोमर इसने बनाने की बात करी है। ओके, तो ट्रांस आइसोमर का मतलब सीधे सीधे क्या है कि इसने CO ऊपर लगाया होगा। ओके, और इसके साथ साथ आपका से X यहां पर लगाया होगा, और इस तरीके से अगर आप ले लें, दिस PPH3 एक्चुअली ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ओके, तो मैं उसको नहीं लगा रहा हूं। तो ये बोलता है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए, ओके, तो करेक्ट ऑर्डर X के रेट का वेरिएशन के साथ क्या होगा, जहां पे X आपका लिविंग ग्रुप है। तो मैंने पहले ही बताया लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है वो साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकती है। एंड इन द हेलोजन सीरीज एज यू गो डाउन द ग्रुप योर लिविंग एबिलिटी इंक्रीजेस। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप इसमें I है, फॉलोड बाय द Br एंड Cl एंड F। तो ये देखिए ये इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जितने क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हो सकते हैं आपने प्रैक्टिस करने हैं। और ये अक्सर आप जान लीजिए कि 3-4 बुक्स हैं आपकी एटलीस्ट, कम से कम उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी से हुई के एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, हुई के अलावा आप एट श्रेवर एंड एटकिंस के सॉल्व कर लीजिए, हाउसक्राफ्ट की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और या फिर आपके पास मिसलर एंड टार है तो उसकी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की आदत डालेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, एंड देन अगेन आई वांट टू शो यू वन मोर क्वेश्चन इफ आई हैव। हालांकि वो किसी एग्जाम का तो नहीं है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है कि इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इफ अगर वो यहाँ, ओके फाइन, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वन, राइट। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको लगता है। अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स द बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो जिसका बेसिक हाइड्रोलिसिस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब पहले वो लिखना है जो सबसे फास्ट आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस देगा। तो एक चीज अभी आपने देखी है, कोई भी देखिए सब में क्या है, इथाइलिन डायमीन इज हेयर, इथाइलिन डायमीन इज हेयर, इन सब केसेस में इथाइलिन डायमीन है ना। तो ये तो बैक बॉन्डिंग करती है, तो बैक बॉन्डिंग तो हर केस में हो रही है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा, कोबाल्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब कोई भी ऐसी कंडीशन जो कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगी, जैसे जैसे कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वैसे वैसे इस कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा। और अगर इसका रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक है, तो रिपल्शन कम होने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखते हैं NO2 जो है आपका, ये तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करेगा तो ये वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो Cl को आप लिविंग ग्रुप की तरह नहीं निकाल सकते। तो याद मान के चलिए कि ये जो D है आपका, ये तो सबसे लोएस्ट रेट आपका शो करेगा। ओके, देन यू हैव दीज 3 ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस में आपके पास देखिए साइनाइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और साथ ही साथ ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब इनमें भी देखें साइनाइड एक हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे 2 लगे हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का तरीका होगा वो और स्ट्रांग होगा। सो सेकंड में आपका ये बी आना चाहिए। ओके, एंड देन थर्ड यू विल हैव योर सी, एंड देन ए सबसे पहले आपका। तो सबसे फास्ट इसमें रिएक्ट कौन करेगा, ए रिएक्ट करेगा, क्योंकि ए उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करते हैं इनका, तो इस केस में आप देखेंगे
कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये दो फ्लोरीन होने की वजह से, एक फ्लोरीन होता तो जरूर ये जीत सकता था। और डी क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले रहा है तो सबसे कम रिएक्टिव ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में गाइस पूछे जा सकते हो। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, to go for the basic hydrolysis, it is important to for a leaving group to leave from here, and for that your cobalt and the chlorine, cobalt and the leaving group bond should be weaker. Okay, so if reduction of electron density on cobalt takes place, this will decrease the rate of the reaction, and of course this will decrease by forming the pi bond, metal to ligand pi bond, more decrease would be there, so it would be least reactive. Okay, and then it would be best reactive. So this is all about your basic hydrolysis, guys. I hope this is clear to you, and in the next class, maybe tomorrow or the day after tomorrow, I'll complete your annihilation reaction and water exchange reaction, and after that I'll come to the charge transfer bands and LMCT, MLCT, all these types of the things. Okay, तो गाइस अगर आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करें टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को। ओके, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। एंड बट रिमेंबर वन थिंग, आप सिर्फ और सिर्फ किसी के वीडियोस पे रिलाय पूरा 100% नहीं हो सकते। यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सारी किताबें उठाइए, सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपके पास नहीं अगर कोई ये किताबें हैं, तो आप मेरे से ग्रुप में आ सकते हैं या मुझसे डिमांड कर सकते हैं, तो इनकी सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।